ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। There are those who study medicine to make a living, and then there are a rare few who are trained by life itself to become instruments in the hands of the divine. He didn't walk into hospitals chasing titles or accolades. He walked in holding on to the words of his master. Start the day with love, end the day with love, fill the day with love, end the day with love. From a little boy seated in Balvikas, eyes wide open to Swami's stories, to a man quietly leading with compassion, his journey was never about reaching the top. It was always about staying rooted at his feet. When challenges came, he didn't ask, why me? He simply asked, how can I serve better? Because for him, every heartbeat was a whisper from God, every patient a lesson in surrender, every scar a reminder that healing begins where self fades into surrender. He never tried to become someone in the world. He tries to be one in Swami's work, in Swami's way, in Swami's will. And in doing so, he became what the world now sees: a doctor, a devotee, a sevak, a child of Sai. This is not the story of a man alone. This is the story of what happens when you hand over your life to him completely, when you let him do and simply become the witness. Dr. Sanjay Agarwal is presently the director at Sai Sanjeevani Hospital and Sai Sanjeevani Institute of Medical Sciences. His journey is a testament to dedication, discipline, and divine guidance. Dr. Agarwal seamlessly blends medical expertise with spiritual wisdom, omnipresent, healing through him. Dr. Sanjay Agarwal. Om Shri Sai Ram, offering my humble salutations at the lotus feet of our beloved Bhagavan as we celebrate the Janmotsavam of our beloved Lord. Dear brothers and sisters, I, Sai Sirisha, from the state of Karnataka South, a participant of the current batch of the Sri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation, have the privilege of welcoming you all to the 5th episode of Satsangatve Nisangatvam. भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि सच्चा डॉक्टर वही है जो जानता है कि दवा का उद्देश्य डॉक्टर और मरीज के बीच दिल से दिल और प्रेम से प्रेम का संबंध स्थापित करना है. It is through such doctors that the love of God flows and the hand of the divine prevails. And
It is in their unshaking faith that the omnipresence of the Almighty is felt. आज हमारे बीच एक ऐसे डॉक्टर उपस्थित है जिन्हें स्वयं भगवान ने मार्गदर्शन दिया है. Dr. Sanjay Agarwal, an alumnus of the Sri Satya Sai Bal Vikas. He was blessed by Bhagwan himself with the Excellence Award during the very first Bal Vikas alumni meet in 2010. As a renowned laparoscopic surgeon, his dedication has earned him national acclaim, including recognition in the Limca Book of Records, the Indian Achievers Award, and the Himachal Ratna Award. Among 100 surgeons, he topped the examination at AIIMS New Delhi, securing an international fellowship from the International College of Laparoscopic Surgeons. ना केवल ये साई संजीवनी हॉस्पिटल और साई संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के निर्देशक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बल्कि संगठन में भी विभिन्न भूमिकाओं में अपना सेवा कर रहे हैं. Dr. Agarwal has served as the state president of the Sri Satya Sai Seva Organizations, Himachal Pradesh for over 6 years, and now serves as the editor of Sri Satya Sai Arogya Premanjali, a national medical newsletter of our Seva organization. With Seva as his path, surrender as his strength, and Swami as his only source, we welcome you, sir, to take us through your experiences with the omnipresent, healing through him. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Shri Sat Sai Baba. My most beloved Bhagwan. Thank you, sister, for those words of appreciation, of surrender, of blessings from our dear Lord Bhagwan Shri Sat Sai Baba. My thanks to the organizers. First of all, thanks to Bhagwan for giving me this opportunity, this golden opportunity of speaking to such wonderful friends who are in this, I'll call it a golden group of the National Leadership Program. Brothers and sisters, this is not just a course for national leadership. This is your partnership with Bhagwan Shri Sat Sai Baba's mission. And this mission is not going to stop. It will go high, high and high. It will go till the top. And one day you will really feel that we, being part of it, have been chosen by Bhagwan Shri Sat Sai Baba himself. He's a master with a magic wand. He's a master with a blessing hand. And the master who controls the matters which denying solutions. This master keeps playing with me. He keeps playing with you. He keeps playing with all of us, putting us to a test for the sake of our good. This master is unique. This master is the sun. Brothers and sisters, he is the moon and the star, which gives us light, energy, truth, and faith. This master of the ring which moves round and round, bringing the ring of birth and death together, leaving no stones unturned for us to behave with human values ordained: Satya, Dharma, Prema, Shanti, and Ahimsa. Brothers and sisters, मुझे कहा गया था कि मैं अपनी जीवन का जो जर्नी है, पूरा जीवन का सारांश आपके सामने रखूं एज अ डॉक्टर. भगवान श्री सत साई बाबा ने इतना दिया है कि कोई शब्द नहीं है कि मैं उल्लेख कर सकूं उनके चरणों में. एक सरेंडर या कहूं तो उनके चरणों में मैं अपने मुंह से क्या शब्द इस्तेमाल करूं या क्या कुछ कहूं, मुझे आज समझ नहीं आ रहा है.
शायद जो कुछ आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, शायद मैं बोल ना पाऊं, परंतु हाँ, बहुत से कुछ ऐसे वाकयात हैं, there are so many incidents in my life related to भगवान श्री सत्साई बाबा's helping me in healing people as a doctor, वो आपसे शेयर जरूर करूंगा मैं। Brothers and sisters, my journey wouldn't have been the same had Bhagwan not been guiding him. I am grateful that Bhagwan, my Lord, has been teaching me throughout. His guidance this day and that day. It seems it was just another day. It was just the yesterday that he was talking to me. It was just the other day when I was sitting with him. It was just the other day when he was guiding me. It was just the other day when I was a small child of 7, when he came to my town. My town, brothers and sisters, is called Solan. It's a district just near Shimla in Himachal Pradesh. आप में से बहुतों को मालूम होगा शिमला के बारे में, जिसे हम क्वीन ऑफ द हिल्स कहते हैं। और भगवान श्री सत्य साईं बाबा शिमला 3 बार अपना दौरा जो है कर चुके हैं। और मैं कहता हूं कि आज भी भगवान श्री सत्य साईं बाबा शिमला में ही रहते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ने अपना जो निवास स्थान है उसका नाम आनंद विलास रखा हुआ है शिमला में। आनंद विलास का मतलब आनंद, आनंद और आनंद। भाइयों बहनों, जब भगवान श्री सत्य साईं बाबा 1975 यानी 1975 when he came to Shimla, I was a very small child of 7. That time I was in school. I was studying in a convent school, St. Luke School in Solan. The grounds where Bhagwan Shri Satsai Baba was to come, it was nearly, I'll say, overflowing with people, overflowing with devotees. Big ground. It's still the same in my town. It's a very big ground. And brothers and sisters, हम सभी को जो बच्चे थे उन्हें स्कूल से आधी छुट्टी करके लेकर वहां जाया गया और हम कड़कती धूप में भगवान श्री सत्साई बाबा जी का इंतजार कर रहे थे। वो निवाला एक ब्रेड का पीस हमारे मदर ने हमें दे दिया कि बेटा आज का लंच यही है तुम्हारे लिए, क्योंकि भगवान ने 1 बजे आना था। भगवान को आते आते समय तो लगता ही है, तो भगवान को 1 घंटा 2 घंटा देरी हो गई होगी, परंतु कड़कती धूप में हम सब इंतजार कर रहे थे और भजन भगवान श्री सत्साई बाबा के चले हुए थे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, यही थीम सॉन्ग था, थीम भजन था जो भगवान ने उस दिन के लिए चुना था। भगवान श्री सत्साई बाबा की पूरी जो कारवां था गाड़ियों का दिखा मुझे पहाड़ी के ऊपर से आता हुआ। बहनों भाइयों, हमारा एक पहाड़ी प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, तो दूर से नजर आ जाता है पूरी जो गाड़ियां जब आती हैं तो नजर आता है कि दूर से गाड़ियां आ रही हैं। तो वही सब नजर आया। आगे आगे पायलट्स थे, कुछ सरकारी अफसर थे, उसके पीछे पीछे भगवान का कारवां चला आ रहा था। और भगवान का कारवां जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था, म्यूजिक भजन तेज होते गए और होते ही हैं हमेशा। जैसे भगवान चाहते हैं, भगवान कहते हैं, वो म्यूजिक तेज होता गया और भगवान का पदार्पण होता है उस ग्राउंड के बीच में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वाज सिटिंग इन द 3rd row। भगवान अपने यूथफुल टाइम में, भगवान जैसे हम आज हैं, भगवान भी वैसे ही थे, लहराते हुए बाल, भगवान की चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आज भी मुझे याद है। और ना जाने क्या मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। पहली बार भगवान को देख रहा था, 7 साल का छोटा सा बच्चा, और भगवान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि भगवान आज मुझे आप क्या देने वाले हैं। और वाकई में भगवान वहां से उतरते हैं, स्टेज पर जाते हैं। छोटा सा स्टेज बनाया गया था, आपने शायद फोटोग्राफ्स देखी होंगी शिमला की। छोटे छोटे स्टेज बनाए जाते थे उस दौरान। छोटे स्टेज पर भगवान जाते हैं और भगवान वहां से अपना दर्शन सबको देते हैं और एकाएक वो नीचे आ जाते हैं। नीचे यानी कि ग्राउंड में अपने अनुयायियों के बीच, हमारे भक्तों के बीच में आ जाते हैं। और ना जाने क्या हुआ कि 3rd row में भगवान आकर रुक गए और मैं कोने पर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। तो भगवान आसपास कुछ भक्तों से कुछ बात कर रहे थे, तो एकाएक उनका हाथ जो है, मैं खड़ा हुआ था, मेरी हाइट काफी शॉर्ट थी उस टाइम पे,
तो मेरा उनका हाथ जो है मेरे सिर पर करीबन मैं अभी तक मुझे याद है कि मैं कह रहा हूँ ना, कल ही की बात लगती है। 3-4 मिनट तक भगवान ने अपना हाथ जो है मेरे सिर के ऊपर रख के रखा और आस-पास अपने भक्तों से बात करते रहे। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भगवान वापस गए, ऊपर गए, स्टेज पर गए। भगवान ने एक भजन छेड़ा, प्रेम मुदित मन से कहो राम, राम, राम। और भगवान के इस मधुर वाणी में भगवान सबको विभोर कर गए। और भगवान जैसे ही ये भजन चलता रहा, भगवान अगले 5-7 मिनट में भगवान अपनी गाड़ी में फिर रुखसत हो गए, शिमला की ओर चले गए भगवान। वो दिन हम जब वो खचाखच भरा मैदान छोड़ रहे थे, तो आपको तो पता ही है, मेले में छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, तो भगवान की एक फ़ोटोग्राफ वहाँ मिल गई और मेरे पास भी एक शायद ₹1 का सिक्का था और मैंने एक फ़ोटोग्राफ वहाँ से आई परचेज़्ड अ फ़ोटोग्राफ ऑफ भगवान। घर गया, उसे अपने छोटे से मंदिर में आई जस्ट प्लेस्ड इट एंड जस्ट बाउड बिफोर इट। और मैं बाउ कर ही रहा था, बाउ करता रहा, कुछ देर प्रार्थना की भगवान की, तो कुछ द्रव्य पदार्थ जो है दैट स्टार्टेड एमनेटिंग फ्रॉम द फ़ोटोग्राफ। और बिल्कुल भगवान का हाथ ऐसे था और उस हाथ से जो है एक द्रव्य पदार्थ, अ लिक्विड स्टार्टेड एमिनेटिंग। एक आंटी जी थे, वो भी साईं भक्त, वो आते हैं और कहते हैं ये तो शहद है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शहद है। हनी वाज कमिंग आउट, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑफ 1975। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट डे एंड टुडे ही चेंज्ड माय लाइफ। My family is a family of engineers. My sister is an engineer. My father was a chief engineer. My uncles are engineers. All are engineers. But now he put my life into a destiny to become a doctor. A doctor I became. Then he's transformed that line also and just guided me towards doing surgery. And I'm a surgeon now. Then after that, I just did a super specialty and then came into a laparoscopy side. Laparoscopic surgeon I am. So Bhagwan just guided me from that day. And brothers and sisters, what happened was whenever I used to go to school, in the way the government hospital, that is a big hospital in my town, used to be there. It is still there. And before the entrance of it, I would bow before it, sometimes just putting my head over the pedestal there, and then praying to Bhagwan, Bhagwan, I want to be a doctor. And brothers and sisters, whatever happened, stories are there. Many people have guided me in becoming a doctor. All the very many thanks to my the previous state president who remained a state president for 30 years, Professor Shyam Sundarji, whom lovingly we call Guruji. He stays in Shimla. He's still there. He still guides me. All said and done, but his guidance came a long way in making me become a doctor. He connected me to Bhagwan Shri Satsai Baba. Always, whenever I used to go to Puttaparthi, Prashante Nilayam, state used to stay in his room and he used to take me to Bhagwan. वो कहते हैं ना, कोई जरिया होना चाहिए, कोई ना कोई बीच में माध्यम होना चाहिए। वो और हमारे नेशनल स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता दीदी, शी वाज आल्सो अ बिग इंस्ट्रूमेंट इन माय कमिंग सो क्लोज टू भगवान फिजिकली। भगवान मेरे हैं, आप सभी के हैं, आप सभी के दिल में बसते हैं। मेरे, मैं मानता हूं कि मेरे ज्यादा बसते हैं। भगवान ऐसे गाइड करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, जब मेरे एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम था, तो एमबीबीएस के फाइनल एग्जाम, एमबीबीएस इज अ वेरी टफ एग्जाम टू क्रैक। एंड एमबीबीएस का जो एग्जाम होता है, उसमें ऐसा लगता है कि मालूम नामालूम कितने लोग फेल होंगे, कितने पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। तो मुझे अभी भी याद है भगवान श्री सत्साई बाबा जी की वो विभूति मैं अपने मस्तक पर लगाकर जाता था और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था। और एमबीबीएस के दौरान ही 1987 की बात है, 1987, फर्स्ट टाइम आई वेंट टू पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम। उसका भी एक कहानी है। परंतु मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, दैट वाज इन 91। व्हाट हैपेंड, इतने सारे केसेस आते हैं, आपको मालूम है, पूरा एक बड़ा एग्जाम होता है एमबीबीएस का, और उसके बीच में कितने सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, पेशेंट्स आपको दिए जाते हैं और एग्जामिनर्स आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, पीजीआई चंडीगढ़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, बहुत जगह से एग्जामिनर आ रहे थे। और सर्जरी का एग्जाम आता है, एक कार्सिनोमा यानी कि कैंसर का एग्जाम, मुझे हाथ में थमा दिया जाता है, कैंसर का पेशेंट थमा दिया जाता है। सिस्टर, जो भी मुझसे पूछा गया, नामालूम कहाँ मैं किसके माध्यम से जवाब दे रहा था, हु वाज आंसरिंग थ्रू मी,
But yes, in the practical, I scored 48 out of 50 in surgery. Then came the medicine exam. Another good case came, and it was an ascites case, यानी कि पेट में पानी भरा हुआ था. And that too, technically speaking, a very good case to discuss. And same happened in that exam also. उसी प्रकार से एक कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर होता है. कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी. हम अगर जाते हैं, नेशनल प्रोग्राम्स डिस्कस करते हैं, नेशनल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट जो होते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन, जैसे अभी कोविड आया था, वो सब, दीज ऑल कम अंडर द परव्यू ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन. तो जब कम्युनिटी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, तो कम्युनिटी मेडिसिन में क्या था कि 100 में से एक 20 नंबर का जो एग्जाम आ रहा है, एक क्वेश्चन हमें आता है, दैट वाज प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी कॉल इज एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी पे प्रश्न आया, और उसमें मुझे अभी भी याद है, 20 नंबर का प्रश्न था वो. 100 में से 20 होना बहुत बड़ी बात होती है. और वो उसके जो पॉइंट्स थे वो 16 थे, 16. उसका एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ था, दैट वाज स्वामी प्रशांति निलयम. स्वामी प्रशांति निलयम, अगर पूरे अल्फाबेट्स कैलकुलेट कर लेंगे तो उतने ही बनते हैं करीबन, जितने की क्या उसके रीजन थे या जितने उसके यूजेस थे. तो एक एक करके स्वामी SWAMI, आई हैड मग्ड अप द होल थिंग. और कितने लोगों को मैंने पेपर भी पास किया होगा अपने सहपाठियों को कि भैया आप भी देख लीजिए. परंतु मुझे याद है अभी तक कि एग्जामिनर इतना खुश हुआ कि उसने 20 में से 20 मार्क्स जो हैं कम्युनिटी मेडिसिन में मुझे दिए. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे जैसे वो एग्जाम समाप्त हुआ, मैं गुरुजी यानी कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनके कमरे में बैठा रोज आता था. रोज सेवा का कोई ना कोई कार्य मुझे मिलता था करने को, चाहे वो चिट्ठियां लिखनी हो, चाहे वो स्वामी के लिए कुछ शब्द लिखने हो, क्योंकि वो एक बुक भी लिख रहे थे. बहुत कुछ मैं उनकी हेल्प कर दिया करता था. और वैसे भी मेडिकल कैंप्स में जाना, ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाना, कहीं ना कहीं मुझे आज्ञा मिल जाती थी जाने की. So whatever I was like told to do, I used to do it sincerely. And always one thing was still tickling my mind, that was my result, the impending result that was to come for MBBS. ब्रदर्स सिस्टर्स कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ ये मांगते थे कि हम पास होना चाहते हैं. परंतु जब रिजल्ट आया तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भगवान श्री सत्साई बाबा जी का इतना हाथ है उस रिजल्ट में कि ही मेड मी टॉप द एग्जाम. आई गॉट द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ माई कॉलेज with 5 gold medals for individual subjects, and none other than the eminent devotee of Bhagwan, Shankar Dayal Sharma ji, the President of India at that time. He awarded me with all those 6 medals in a convocation that happened the next year. Such are the miracles of Bhagwan Shri Satsang Baba. मैं आज जैसे मेरा टॉपिक है, that is omni presence, healing through Sai. ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं एक ये वॉलेट अपना दिखा रहा हूँ आपको. इस वॉलेट में हमेशा हमेशा मैं एक चीज रखता हूँ, वो है विभूति. ये विभूति ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे आह्वान करता हूँ, हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए. ये विभूति कुछ नहीं है. दिस विभूति इज नथिंग. भगवान ने कहा है विभूति मतलब ऐश, एंड यू ऑल नो दिस ऐश इज नथिंग. But this ash, जिसको भगवान श्री सत्साई बाबा कहते हैं, this ash is a miracle. This ash is a cure in itself. This ash has helped me heal so many and save so many lives, I would say. This विभूति अगर मस्तक पे आप लगा लेंगे ना, चाहे कितने भी एग्जाम्स हों, चाहे कितने भी आपकी दुविधाएं हों, चाहे आपको समस्याएं कितनी भी आती हों, पर्सनल लाइफ में हो, आपके एग्जाम्स में हो, कहीं पर भी होती हूँ, परंतु ये विभूति जो है आपको इतना हेल्प करेगी. भगवान ने कहा है दिस विभूति के बारे में भगवान कहते हैं, बहुत भगवान ने अपने डिस्कोर्स में कितना सर्वश्रेष्ठ कहा है टू स्पीक ऑफ ऐश विभूति. इट सिग्निफाइज नथिंग, बट इट सिग्निफाइज मच मोर देन द अल्टीमेट. इट स्पेल्स आउट आवर डेस्टिनी, आवर डूम, आवर एलिवेशन. दिस ऐश इज द एंड एंड द बिगिनिंग, बट यस, at the top of it, it is a symbol of divinity, the aura and the aroma it carries. Paramam pavitram bhava vibhutim, paramam vichitram leela vibhutim. लीला है ये भाई बहनों, लीला है, वाकई में लीला है. कुछ नहीं है, किसी ऐसे घास को जलाकर नहीं बनी हुई है, काउडंग से नहीं बनी हुई है. केवल इसमें भगवान की तरंगे हैं, इसमें भगवान की डिविनिटी है.
परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानम, इसके लिए भगवान के विभूति मंत्र में हम कहते हैं। और भगवान का ये विभूति मंत्र क्यों नहीं हम बार बार रटा करें। मैं कहता हूँ एज ए डॉक्टर कि विभूति जो है, जब मिरेकल एक भगवान ने मुझे दिया हुआ है, एक दवाई मुझे दी हुई है, तो कैसे कैसे मैं इस्तेमाल इसे करना चाहता हूँ। ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और कितना अधिक भगवान ने इसके बारे में कितना स्ट्रेस किया है। आप देखिए, एक फैक्ट्री लगी हुई है पुट्टपर्थी में, विभूति आपको एंट्रेंस पे भी मिलेगी। आप आश्रम को एंटर कीजिए, वहां भी विभूति के पैकेट्स आपको मिल जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। कितने पैकेट्स आपको चाहिए भगवान के? ये जो प्रसाद है, ये एक मेडिकल क्योर है, ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ। मेरी पूरी लाइफ में जो मैं इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इतने सारे इंसिडेंट्स है बहनों भाइयों। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले, आई वॉज ट्रेवलिंग इन ऑस्ट्रेलिया। I'd gone with my family for I'd say a holiday to Australia, and it was a weekend. It was an year end. 25-26 तारीख को दिसंबर में हम पहुंचते हैं वहां पर। मेरे दो बेटे हैं। One is the eldest is in the elder one. He's doing his MS surgery in first year, and the younger one is in first year of MBBS. Both are becoming doctors. All credit to Bhagwan. और वो सब हम चारों जा रहे। माई वाइफ इज ऑल्सो अ डॉक्टर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर सविता। एंड हम चारों जा रहे थे। तो पर्थ सबसे पहले पहुंचते हैं। तो पर्थ जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में है, और ईस्ट साइड में पड़ता है सिडनी। तो वी वर ट्रेवलिंग ऑन 30th of December दैट ईयर फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब वहां से हम निकलते हैं पर्थ से शाम के वक्त, रात्रि का वक्त होगा, कोई 11 साढ़े 11 का वक्त होगा। मैं बता रहा हूँ, नए साल का टाइम, नए साल का ही दिन। और उस समय भगवान की विभूति क्या मेरेकल दिखाती है, क्या चमत्कार दिखाती है। आप देखिए भगवान कहाँ से आते हैं आपकी हेल्प के लिए। सभी कोई ऊँग रहे थे, रात्रि का वक्त था, सबने अपना अपना डिनर सर्व होता है। वर्जिन एयरलाइंस थी। मैं कहता हूँ कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो कितनी सुशोभित होती हैं, कितनी वेल इक्विप्ड होती हैं। आप देखिए, हम जब वहां जा रहे थे तो उधर से रात को सभी ऊँग रहे थे, सभी सो रहे थे, मेरे फैमिली मेंबर्स भी थोड़ा ऊँग रहे थे। तो एक आवाज आती है ऊपर, कॉकपिट से अनाउंसमेंट आती है कि एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड, एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड। तो मैं अंदर से जानता था कि मैं डॉक्टर तो हूँ, परंतु अब विदेशी एक धरती पर यहाँ पे मांग रहे हैं, और वो भी हजारों हजारों फीट ऊपर जो है, मीटर्स ऊपर जो है, ये मांग हो रही है कि एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड। पता नहीं, एक अंदर से आवाज आई, भगवान श्री सत्य बाबा बोले कि जा बेटा आप जाइए। हाथ में मेरा वॉलेट, मेरे हाथ में, मेरी जेब में हमेशा रहता था। तो वहां जाते, कॉकपिट के पीछे जहाँ पायलट्स उड़ान भरते हैं, उड़ान होते हैं, उसके पीछे बहुत सारी जगह थी। और hefty person, hefty man, an Australian, maybe he must be 150 kg or above. He was lying down, gasping and about to go. मैं कहूँगा मरने जा रहा था। उसके दिन लिखे हुए थे कि वो जाने वाला है, और ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। एक पायलट भी अंदर आ गए चुके थे, एयर होस्टेसेस वहां जमा थी, और एक दो वॉलंटियर्स अपने आगे आगे जो पैसेंजर्स होंगे वो भी वहां खड़े थे। तो मुझे अब मौका था अपने आप को प्रूव करने का, या तो कहूँ भगवान की प्रेरणा को प्रूव करने का, भगवान का आदेश प्रूव करने का। और मैं जुट गया। पहले अंदर से बहुत डर था कि ये विदेशी को मैं कैसे हैंडल करूं, कहीं ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए मेरे गले में। What I did was, उसकी फटाफट जो है, the cardiac massage and oxygen was available, oxygen started, but he was not coming back. Legs up, जितना भी जो कुछ मैं कर सकता था, बिकॉज उसने वेसोवेगल अरेस्ट हो चुका था। और जब वेसोवेगल अरेस्ट होता है, यू नेवर नो ये पेशेंट कब जाएगा, कब इसका दिन लिखे हुए हैं, दिन कम है, कितने ज्यादा है, नहीं है। बट he was not there. Supposedly he was not there, but now I was testing my skills there, and I was using my skills up there, up in the air. आप देखिए 50,000 फीट ऊपर कहाँ मौका मिलता है, कहाँ भगवान ऐसा मौका दे रहा था। तो एक ख्याल यही आया कि बेटा विभूति निकाल लीजिए आप, और जेब से विभूति निकाली चुपचाप। कोई मुझे ऐसा ना कहे कि ये ऐश किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कोई दवाई है क्या। मैंने उसके जो ये कान है उसके पीछे मैं जस्ट गिव अ रब टू इट। एंड बहनों भैया, आप समझ नहीं पाएंगे, आप इसको विश्वास अब तो करना ही पड़ेगा।
विश्वास करना पड़ेगा कि विभूति में कितना मेरिकलस क्योर है, या कहूँगा शक्ति है कितनी। वो विद इन 1 मिनट ही वाज, where am I, he said, where am I, and he was just gasping back to normal. लंबे सांस लिए उसने, लंबे सांस लिया. I was just doing a cardiac massage, thumping his chest, whatever I possible I could do, because no injections available, no medicines available. But yes, physically जो हमें सिखाया गया था cardiopulmonary resuscitation, along with this vibhuti, after just a touch of vibhuti, he came back. और after some 5 or 10 minutes, 15 minutes, जितना resuscitate करते रहे, वो वापस आ गया. और वापस आने के बाद मैं अपनी सीट पर, when I went back, I just slightly glided into my seat, and फिर मैं भी सोने लगा. परंतु एक अंदर सेटिस्फेक्शन थी, भगवान का धन्यवाद था कि भगवान आपने एक बंदा बचा लिया. और जो प्लेन को वो 10,000 फीट नीचे ला चुके थे ब्रिस्बेन में उतरने के लिए, मिडवे दे वर प्लानिंग टू लैंड द फ्लाइट. Now that flight was back to its journey to Sydney. And जब हम सिडनी उतरते हैं, जब नीचे उतरते हैं, तो the whole fleet, I'll say the crew members, they were standing near the plane all together. The 2 pilots and the sisters, the air hostesses, they were all standing, and they said, "Thank you, Indian doctor." That is what those were the words, those pleasant words, those gifted words, which I still cherish and thank Bhagwan Shri Satsai Baba. Bhagwan, आप कहाँ क्या दिखाते हैं, and I have been healing through you. है ना भाइयों? Till date, I must have done some more than 50,000 major surgeries and innumerable minor surgeries also. But I, with conviction, say I've never faltered. Yes, complications do arise. Complications arise because of the patient's previous condition. Patient's condition, say he be having a heart problem, he be having diabetes, he be having a neurological problem or something. But when you operate, if you take fullest of all cares, ultimate care, and Bhagwan Shri Satsai Baba is standing beside you, nothing will happen. Nothing happens. He's been helping me, guiding me all throughout, and he's been doing surgery through my hands. Koi gareeb aata hai, he says, I'm in a private practice, brothers and sisters. But previously, I was in a government job also for 5-6 years. I did my graduation, post-graduation from PGI Chandigarh, one of the coveted institutes, and one of the topmost institutes of the country. There also, my boss used to say, if somebody says, I've never had a complication, my sisters, this is true for any profession, not just surgery or medicine or being a doctor. But if someone says, I've never had a complication, तो मेरा बॉस यही बोलते थे, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरा आप सर्जरी करते ही नहीं है, यानी कि यू डोंट डू वर्क, तब कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी. तो वर्क में जब भी आप काम करेंगे, कॉम्प्लिकेशन तो आना ही आना है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से. तो बट यू नेवर हैव टू गेट अफ्रेड ऑफ इट, बी अफ्रेड ऑफ इट. कुछ नहीं करना है. You have to go on and on taking Swami's name in whatever profession you are. Be it you are a doctor, you are an engineer, you are an advocate, you are a teacher, any profession, or a businessman. किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, भगवान का नाम लेते रहिए. कॉम्प्लिकेशन आती रहेंगी, परंतु भगवान उसको समेटता रहेगा, साथ साथ से हटाता रहेगा. ऐसे आपके लाइफ से कॉम्प्लिकेशन हटती रहेंगी. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बात की बात बता रहा हूं, अभी आपको बीच में एक शेयर करता हूं कि अभी रिसेंटली कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमारे 2 कंट्रीज के बीच में हुआ. उसी के तहत जिस धरती की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो है कश्मीर, श्रीनगर. उसका इनिशिएटिव वहां पर जो है, हमारी श्री सत्साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का मौका इतना मिला है वहां पर. जब फ्लड्स आए वहां पे काम किया, जब मेडिकल कैंप्स के लिए काम किया, उसके बाद लद्दाख में काम किया, और बहुत सारा इनिशिएटिव जो है हमारे नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के कन्वीनर गोपी भैया, हमारे रिस्पेक्टेड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट निमिष पांड्या सर, हमारे सेवादल कोऑर्डिनेटर, नेशनल सेवादल कोऑर्डिनेटर कोटेश्वर राव भैया, सभी ने मिलकर, मैं किस के नाम लूं, हमारे चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे मैनेजिंग ट्रस्टी हो, कितना हेल्प हमारे वहां लद्दाख में हॉस्पिटल के लिए हमारे श्री सत्साई सेंट्रल ट्रस्ट ने किया है. ऑल थैंक्स टू रत्नाकर भैया. He's contributed so much, that trust has contributed so much for the Ladakh hospital. हम वहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं. काफी सारे डॉक्टर साउथ से भी गए, नॉर्थ से भी जाते हैं. अभी आजकल नेत्र मित्र चला हुआ है. नेत्र मित्र यानी कि आई के मोबाइल कैंप्स चले हुए हैं. ऑल द वेरी मेनी थैंक्स टू दोज
whoever has contributed for the van. और इतना प्यारा जो है प्रेम प्रवाहिनी चली हुई है, भगवान का रथ चला हुआ है, साथ ही साथ ये नेत्र मित्र भी चला हुआ है। नेत्र मित्र यानी कि आंखों की जितनी डिजीजेस हैं उसके लिए वहां चला हुआ है कार्यक्रम, और ये अल्टीमेटली ये भी कश्मीर जाएगा, यानी कि लद्दाख जाएगा वहां पे सेवा करने के लिए। कश्मीर की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले एक मेडिकल कैंप में जब गए, मैं थे, गोपी भैया थे, हम एक ही कमरे में थे, एक ही होटल में थे। और आपको मालूम ही है व्हाट हैपेंस इन श्रीनगर, और उस श्रीनगर के पूरे माहौल का मैं विस्तृत विवरण क्या करूं। बहुत डर सा का माहौल, पूरी हवा में ही वहां पर डर है। हवा में ही लगता है कि यार आप कहाँ पर आ गए हैं। और हमारा होटल वाज आल्सो जस्ट एडजेसेंट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर डल लेक। बड़े बड़े नाम है, लाल चौक, डल लेक, ऐसे से नाम वहां पे, बारामूला, मतलब कितने ऐसे से नाम है जहां पर हमने मेडिकल कैंप्स किए, परंतु उनका नाम लेते हुए भी डर लगता है। परंतु वहां पे पूरे जोश के साथ भगवान श्री सत्साई बाबा जी का आशीर्वाद और भगवान श्री सत्साई बाबा जी की जो शक्ति हमें हमें खींच कर वहां पर लेकर गई। कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं, एफर्ट्स किए, नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के हमारे लीडर्स ने किए, हमारे सेवा दल के ऑर्डिनेटर्स ने किए। वो सब करते करते वहां पहुंचते हैं तो एक ख्याल मन में आया, गोपी और मेरे मन में, कि क्यों ना हम ऐसी जगह को जाएं जहां पर भगवान श्री सत्साई बाबा विचरण करते हुए जब अपने समय में आए थे 1957 में, उस 57 के दशक में, उस समय ईयर में जब भगवान आए थे, रहे कहाँ पे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक नाम है एलेक्जेंड्रा पैलेस, वो एक हाउस बोट है। उस समय जो कहानी बताई जाती है, भगवान जब वहां गए थे कश्मीर, तब भगवान को आमंत्रित किया था शंकराचार्य जी ने, जो श्रीनगर के हैं, उन्हें कहा था कि आप हमारे साथ रहिए, परंतु भगवान चोज टू स्टे इन अ हाउस बोट दैट वाज कॉल्ड अलेक्जेंड्रा पैलेस। और मैं और गोपी निकल पड़े। शाम के वक्त था, शाम का वक्त था, डस्क, इट वाज अ डस्क टाइम, एंड वी जस्ट वेंचर्ड आउट इनटू द डल लेक इन अ शिकारा, just to find out where भगवान श्री सत्य साईं बाबा stayed during his visit in कश्मीर। और बहनों भाइयों, बहुत समय लगा। ऐसा लग रहा था कि जितनी हाउस बोट्स वहां पे जा रही हैं, आप डल लेक में जब शाम को वक्त जाओगे, ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे पे चले हो। इतनी सारी बोट्स आती हैं, जाती हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, किसी में कुछ सामान जा रहा है, किसी में फूल जा रहे हैं, किसी में कमल के फूल जा रहे हैं, किसी में कुछ ना कुछ स्त्रियां, लेडीज जा रही हैं। सबने वो अपने वस्त्र ऐसे डाले होते हैं खुले से, फिरन जिसे कहते हैं, या कहें तो बुरके डाले होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी गन्स है। उसमें भी ऐसा लग रहा था किसी ने गन छुपाई हुई है। कैसे हम सुख ऐसे, हम डरे डरे से उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे, पूछते जा रहे थे अलेक्जेंड्रा पैलेस कहाँ है। तो एकाएक किसी ने बताया वो है अलेक्जेंड्रा पैलेस। हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हुए पूछ रहे थे अलेक्जेंड्रा पैलेस क्या है। और वहां पर उतरते हैं बहनों भाइयों, यस, गॉट डाउन, उसके अंदर जाते हैं और भव्य एक ऐसा स्थान पाते हैं जहां भगवान श्री सत्य बाबा रहे होंगे। उसमें घुसते ही ऐसा लगा कि जैसे वाइब्रेशंस हमारे मन में ही थी, हमारे मस्तक में थी। ऐसा लग रहा था कि आज हम प्रशांति निलय में पहुंच गए। एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था और आपसे रिलेटेड भी है लीडरशिप प्रोग्राम से। तो देखिए कैसे कैसे हम लीड लेते हैं, जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जगहों को हम ढूंढते हैं जहां पर जाके हमें मिलता है बहुत कुछ। स्वामी क्या क्या देते हैं। मैं अपना याद कर रहा हूँ, जब हमने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी, एक छोटा सा हॉस्पिटल शुरू किया था, 4 बेड्स उसमें हुआ करते थे, 4 बेड्स से शुरुआत कर रहे थे। बहुत हम डरे हुए थे, मैं, मेरी धर्मपत्नी, हम बहुत डरे हुए थे, बच्चे थे नहीं तब। ऐसा लगा कि अब ये हॉस्पिटल मतलब ये एक छोटा सा क्लिनिक जो है वो शुरू कैसे होगा। हम पहले दिन बैठे हुए थे, 2 दिन बाद उसका इनॉग्रेशन होना था, भगवान की पूरी पूजा अर्चना, कीर्तन, भजन के बाद। परंतु उससे पहले 2 दिन पहले बाहर बोर्ड टांग रहे थे। बोर्ड मतलब होता है जो साइन बोर्ड, इट वाज बीइंग लाइक इरेक्टेड up in the on the forehead of the clinic। वो लग रहा था, तो इतने में एकाएक वहां गाड़ी रुकती है, तो उसमें से एक हेफ्टी सरदार जी, मे बी फ्लोइंग बियर्ड, वाइट ड्रेस, टोटल वाइट टर्बन, वो आते हैं। काका मेरा बीपी देखिए एक मिनट। मेरे को लाया बस, ही सेड प्लीज सी माय ब्लड प्रेशर बिकॉज आई एम अ हाइपरटेंशन पेशेंट। एंड नीचे मैं देखता हूँ कि बाहर झांक कर देखता हूँ तो वाइट गाड़ी, वाइट एम्बेसडर में वो थे। एम्बेसडर आजकल होती नहीं थी, परंतु एम्बेसडर में थे भाई साहब। पुरानी गाड़ी, पुराना बंदा, maybe around 75 80 years of age, and he got down and he said काका मेरे आप बीपी देखें। and he I just मैं उनको बताया कि बाबा जी हमने अभी क्लिनिक शुरू नहीं किया है, स्टार्टिंग क्लिनिक एंड नाउ वी स्टार्टेड, एंड बीपी उनका देखा, सब कुछ देखा। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, इन द एंड ही सेड काका घबराया क्यों है, घबराना क्यों है, ये रख
500 रुपए का नोट. He gave me 500 rupees, brothers and sisters. That time my consultation fee was 20 rupees. And he gave me 500 rupees. I've just stored that 500 rupee note in my mandir. And that 500 rupee note, you know, I just cherish it because I took it because it was like Bhagwan Shri Satsai Baba had given to me. तब से आज तक कभी भी कोई भी कमी भगवान ने नहीं दी है. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा ही होता है. टोटल सरेंडर, टोटल फेथ इन भगवान. ना जाने कहाँ क्या क्या देगा. अभी की बात है, लास्ट वीक we went to a hotel in Chandigarh. Chandigarh is a place, it's the capital of Haryana and Punjab. तो वहाँ गए तो वहाँ पर एक होटल है JW Marriott. Me and my family, we just went there to have a dinner there. तो डिनर के लिए वहाँ चले गए. तो वहाँ जैसे ही जाते हैं तो एक देखा कि साथ वाली टेबल पर जो है कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, यंग गर्ल, मे बी ऑफ 22 years of age, and she was keeping on staring at us, me and my wife. उसका नाम है संजीवनी. मेरा हॉस्पिटल का नाम है संजीवनी, साई संजीवनी. उसका नाम लड़की का संजीवनी. जैसे ही उनका डिनर खत्म हुआ तो ही जस्ट केम टू अस एंड सेड, आप सर डॉक्टर संजय अग्रवाल तो नहीं है, डॉक्टर सविता तो नहीं है, मैं संजीवनी हूं, आपकी पहली पेशेंट. बताइए. भगवान श्री सत्साई बाबा हेल्प मी डिलीवर हर व्हेन हर मदर केम टू मी इन पेन्स इन अ क्लिनिक व्हिच वाज नॉट येट स्टार्टेड. ऐसे ऐसे एपिसोड होते हैं. अभी स्टार्ट नहीं हुआ था हमारा क्लिनिक, एंड दैट लेडी वाज इन लेबर, हर मदर, शी हैड कम टू अ क्लिनिक, and Savita, my wife, she delivered her without gloves, with vibhuti, I'll say, and alleviated of her pain, तो labor pains, and उस समय हमारे पास instruments कोई नहीं थे, and she got managed to deliver her out and safely. And now that girl, she's studying to become a postgraduate and in Chandigarh, and she was all bowing before us and saying thanks to Bhagwan Shri Satsai Baba. She was going on and on praising us, not praising us but Bhagwan, and she was thanking. She took so many photographs with us in the hotel, and I remember clearly that she was delivered at our clinic when our clinic had not yet started. Without instruments, we had delivered her. Brothers and sisters, a similar case I'll just share with you. It was again the New Year's Day, 31st of December. It was raining heavily, and I was in PGI Chandigarh. I was doing my MS Masters of Surgery, and me and a friend of mine, we were at the gates of PGI Chandigarh. The whole department had gone for a party, in the New Year party. The whole, I think the team of doctors were on partying that time. And a lady, was in labor pains. She was in a rickshaw, and it was being pulled by a rickshaw puller, and her mother-in-law had ventured out somewhere to find help, but she was on the gate and she was crying with labor pains. What happened? We took Bhagwan's name. One of the other friend of mine, he started pushing that rickshaw. I took the wheels and I drove. We just rode that the tricycle, I'd say, that rickshaw, towards the emergency of PGI Chandigarh. And yes, brothers and sisters, it was half a kilometer inside. We took her inside, shouted to the sister, ye laiye, garam pani laiye, ye kariye, wo kariye, and Bhagwan ka naam saath saath, vibhuti saath saath, and we managed to deliver that lady on the rickshaw only. That was again 31st of December, and Bhagwan Shri Satsai Baba just helped us out in delivering that baby. We being surgeons, not gynecologists also, and that is a premier institute where it is very unsafe to be from some other department doing the work of other departments. Yes, but we delivered that baby and she was safely delivered. Then we wheeled her into the gynecology department, the obstetric department. But still, that lady cherishes us whenever she meets us. Still, after so many years, 25, 30 years, she still meets us somewhere. कहीं ना कहीं मिल जाती है हमें और हमें धन्यवाद करती है, भगवान का धन्यवाद करती है. कितने ही ऐसे इंसिडेंट्स हैं. एक बार तो ऐसा तक हमने किया कि ट्रेन में आते हुए, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट वैसे ही सुना देता हूँ. नॉट इन माय लाइफ, माय जर्नी, हमारा जो मैरिज हुआ विद माय वाइफ, हाउ स्वामी गाइडेड, स्वामी मेड मी मीट माय डॉक्टर वाइफ, कैसे वो मिलते हैं उनसे, मेरी विवाह मेरा होता है, वो भी एक कहानी है, परंतु सम अदर टाइम. बट एक बार हम जा रहे थे एज अ सेवा दल,
भगवान श्री वहाँ पे पुट्टपर्ती, ये भी 87-88 की बात होगी। हम जा रहे थे, ट्रेन में जाया करते थे, सेवा के लिए जाते थे। सेवा का जो हमारा महीना होता है, जुलाई का है, हिमाचल प्रदेश का। हम दोस्त जा रहे थे, तो एक दोस्त, हमारा दोस्त मतलब एक लड़का, हम में से, सेवा दल में से, वो खिड़की से बाहर लटका हुआ था, दरवाजे से बाहर लटक कर, बाहर से ही वाज आइंग इन सम अदर कैरेज, ऐसे दूसरे डिब्बे की तरफ देख रहा था, टकटकी लगाए। हम सब देखते हैं वो किस चीज को देख रहा है। देखिए, यूथफुल एज, ही वाज आइंग अ गर्ल सिटिंग इन द नेक्स्ट कैरेज। वो देख रहा है, भगवान बाबा का डिवोटी, ही इज डूइंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ट्रेन जा रही है, सरपट ट्रेन, हमारी जो एक्सप्रेस है, वो बेंगलोर की तरफ जा रही है, पुट्टपर्ती की तरफ जा रही है, और वो भाई साहब बाहर देख रहे हैं, बाहर लटके हुए हैं। एकाएक आगे सिग्नल आता है, सिग्नल का एक पिलर आता है, पोल आता है, एंड ही जस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इट। बाहर लटका हुआ है, एंड बाहर से वो टकराता है उसके ऊपर, टकराते हुए गिर जाता है। हमने, किसी ने चेन खींची ट्रेन की, और ट्रेन जो है 2-3 किलोमीटर आगे जाकर रुकती है। जब स्टॉप्ड, रियली स्टॉप्ड, दैट वाज वन टाइम व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड आफ्टर पुलिंग अ चेन। और बाद देखा, हम सब भागे वापस। देखते क्या है कि हमें सोच के कि वो बंदा मर गया होगा, अब तक तो मर चुका होगा, ना जाने क्या मुझे ट्रीटमेंट देना होगा। भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान प्लीज हेल्प हिम, प्लीज सेव हिम, सब कुछ करते करते हम उसकी तरफ भाग रहे हैं, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं, वो हमारी तरफ भाग रहा है। सारे कपड़े फटे हुए हैं, कोई भी कपड़ा उसका ऐसा नहीं था जहां पर उसका फटा हुआ हमें दिख नहीं रहा था। वो भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, और भागता हुआ आ रहा है, वो भी भागता हुआ आ रहा है, हम भी भागते हुए जा रहे हैं। हे भगवान, भैया क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? और वो बिल्कुल चुप। He became so silent. He sat on his sleeper in the seat inside the train, and the train again started. The guard had come, the driver had come of the train. सब कुछ आए, गालियां, मतलब सब कुछ उसको डांटा, करो था, ना जाने क्या क्या कहा, बुला भरा कहा। जब पुट्टपर्ती पहुंचते हैं, अगला दिन हम फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, फ्रंट के सेकंड थर्ड रो में बैठे हैं, और भगवान श्री सत्य बाबा उसकी तरफ आ जाते हैं, आते हैं, और हम साथ बैठे हुए हैं, हमारे को आके कहते हैं, हाँ जी, हाउ आर यू? अब देखिए, भगवान क्या क्या नहीं देखते हैं, भगवान कितना कुछ हमें सिखाते हैं, क्या क्या नहीं देखते हैं भगवान, और कहते हैं कि हाँ, क्या कर रहे थे। वो तो, उसकी आंखों से आंसू, इतने आंसू गिरे, पर लगता था कि धरती जो है वो इतनी गीली हो जाएगी, कि वो रोता रहा, और भगवान चले गए। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान ने कितने आशीर्वाद पुट्टपर्ती में दिए होंगे, साई कुलवंत हॉल में दिए होंगे। मुझे अभी भी याद है एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस, जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं, सविता मेरी वाइफ, और एक डॉक्टर फ्रॉम हिमाचल, वी वर अटेंडिंग दैट, एंड दैट डॉक्टर, शी वाज 9 मंथ्स प्रेग्नेंट, अगेन अ डिलीवरी केस, एंड वी वर इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। आपको मालूम होगा, तो यूनिवर्सिटी के सामने एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और बहुत से डॉक्टर्स, 400-500 डॉक्टर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड ओवर से वहां पर आए हुए थे। और भगवान श्री सत्य बाबा डॉक्टर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत प्रेम करते थे, फिजिकल फॉर्म में भी। और उस समय हम 4 बजे आदेश होता है, वहां पे कॉन्फ्रेंस क्लोज कीजिए, भगवान को कहीं जाना था, तो भगवान दर्शन देने के लिए साई कुलवंत हॉल में जल्दी आ रहे हैं आज, 4:30 बजे आना था, 4 बजे आना है, तो 3:30 बजे अनाउंसमेंट हो जाता है कि आप सब लोग चलिए दर्शन हॉल की तरफ, दर्शन रूम की तरफ। हम सब तैयारी से भागे भागे सब जाने को तैयार। सभी ने बाहर कोल्ड ड्रिंक्स रखे होते थे, बहुत कुछ होता था, बहुत सेवा होती थी डॉक्टर्स की, अभी भी होती है। तो जब वो सब डॉक्टर्स अपने भाग लिए वहां की तरफ की, भगवान ने बुलाया है, तो भगवान ने साई कुलवंत हॉल में, आप मान के चलिए, चेयर्स रखी हुई थी डॉक्टर्स के लिए, सबसे आगे जहाँ पे वीआईपीज होते हैं, वहां पर सब चेयर्स रखा होता था, अनरेज चेयर्स के ऊपर सब डॉक्टर्स बैठते थे, और भगवान आते थे, सबसे मिलते थे एक एक से। और इतना आनंद आता था, ऐसा लगता था ये भगवान, आपने डॉक्टर शायद आज ही के दिन के लिए बनाया है। हम तीनों, यानी कि वी वर हेल्पिंग दैट प्रेग्नेंट डॉक्टर ऑफ आवर्स, अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, मी, माय वाइफ, एंड शी, वी जस्ट सैट डाउन आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल, बिकॉज शी सेड, अब मुझसे चला नहीं जाएगा भैया। शी वॉज हैविंग पर्सपिरेशन, बीपी उसका कम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो शी, आई मेड डाउन देयर, माय वाइफ ऑफर्ड नारियल पानी ऑल, वी हैड, ठीक हो गई, कहती भैया अब चलते हैं। तो जब चलने का बात है, तो आधा घंटा निकल चुका था, हमने सोचा बाबा स्वामी तो आ गए होंगे, चले गए होंगे, हमें दर्शन। हम जब साई कुलवंत हॉल की तरफ जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो सबने कहा आइए आइए, आप ही की वेट हो रही है, और हमें सबसे आगे बैठना था, मैं जेंट्स साइड, वो फीमेल साइड। और बाद में मालूम क्या पड़ता है कि स्वामी ने अंदर बाहर आने से पहले पूछा कि वो 3 डॉक्टर्स आ गए हैं कि नहीं। वो जो लेडी है, जिसको प्रसव यानी कि प्रेगनेंसी है, वो दैट लेडी हैज कम और नॉट। एंड स्वामी जब हम आ गए, तब स्वामी जो है धीरे धीरे जो है अंदर साई कुलवंत हॉल में आते हैं,
हमें आशीर्वाद देते हैं। देखिए भगवान ने कितना कुछ, भगवान नोज एवरीथिंग, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनीसिएंट, ही नोज एवरीथिंग। एक एक चीज हमारी मालूम है उन्हें, एक एक, बहनों भाइयों, एक एक वस्तु भगवान के इशारे से जो है हमारे घर में है। एक एक वस्तु हमारे प्रोफेशनल प्रेमिसेस में, वो भगवान के इशारे की वजह से है। मतलब आप कहेंगे तो कितनी चीजें हैं। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम नहीं कहूंगा, एक एपिसोड हमारा, एक ऑपरेशन जो है लिम्का बुक में है, वो जब हम कर रहे थे उसमें स्वामी ने कितना हेल्प किया, दैट इज ऑल्सो अ स्टोरी इन इटसेल्फ। एंड कितना कुछ भगवान बताते हैं। और एक और छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको। एक बार में हम ऐसे ही, एक पेशेंट जो है, ही फेल इन फ्रंट ऑफ अस इन द बस। बस में हम ट्रैवल कर रहे थे और हम स्टूडेंट से तब, और हम दोनों शिमला जा रहे थे, मैं मेरा फ्रेंड, एंड वी वर जस्ट, एंड वी, दैट पेशेंट कोलैप्स्ड। द पेशेंट लेकर हमने जस्ट बिफोर, अच्छा उसके शर्ट के अंदर से जब वी स्टार्टेड रबिंग विभूति एंड ट्राइंग टू गिव अ कार्डिक मसाज व्हाटएवर, ये वो करके सब कुछ, बट वी वर फार ऑफ फ्रॉम अ वेरी बिग हॉस्पिटल और समथिंग। वी जस्ट ब्रॉट हर द पेशेंट डाउन, एंड जिस हॉस्पिटल में हम कार्यरत थे उसमें उतर के वहां पे वो लेके गए अंदर। अब आप देखा ना ताप जिसे कहते हैं, वी डिडंट सी लेफ्ट और राइट, up, center, whatever. We just took a knife because कोई उसको complication नहीं थी. She had undergone a vasovagal arrest and we knew we could save her. We just cut open her chest. भगवान का नाम लिया, विभूति अपने अंदर भी, उनके अंदर भी, और उनका खोला हार्ट हाथ में लेकर ओपन कार्डियक मसाज जिसे कहते हैं, that we did for the first time in community and that saved her life. This day also we cherish those moments जब भगवान ने हमें हेल्प किया है, जब जब भी हमारी जरूरत पड़ी है, जब जब भी मैं कहता हूँ ऑपरेशन टाइम पे मैं कहीं भी फंस जाता हूँ, भगवान का फोटोग्राफ मेरे सामने होता है ऑपरेशन थिएटर में, और भगवान साक्षात वहां पर आते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरी वाइफ को डिलीवरी होना था, मेरा एल्डर सन हु वाज टू बी डिलीवर्ड, एंड शी स्टिल रिमेंबर स्वामी स्टैंडिंग बिसाइड हर हेड, उसके साथ खड़े होकर, क्योंकि मेरा जो सन है बड़े वाला, उसकी कॉर्ड अराउंड द नेक थी। कॉर्ड होती है एक अंदर से निकलती है जो अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके नेक के चारों तरफ बंधी हुई थी, जैसे शिव जी भगवान के चारों तरफ जो है नाग देवता होते हैं, वैसे ही उसके बांधा हुआ था, उसे रोका हुआ था कि अंदर से बाहर नहीं आना है। एंड स्वामी's नेम, स्वामी केम एंड स्वामी मेड हर डिलीवर आउट इन अ नॉर्मल फैशन, एंड कभी भी उसको आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, और भगवान ने आकर वो सिजेरियन से बचाकर उसे कैसे कैसे हमें उस नैया से पार लगाया, उसे बाहर निकाल कर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें लाऊंगा। बहुत से इंसिडेंट्स है भैया बहनों, हम क्या, व्हाट शुड आई गो ऑन एंड ऑन, आई कैन राइट बुक्स। I've been given the responsibility of writing now as a North Zone president. Whenever I go into states, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, जितने हमारे ब्रदर स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने ब्रदर डिवोटीज हैं, सभी का मैं नतमस्तक होता हूँ। हमेशा जाकर वहाँ देखता हूँ कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। पंजाब में चलिए, वो गुरुद्वारे में जाएंगे तो ऐसा लंगर ऐसा लग जाएगा कि ना जाने क्या क्या हम कर सकते हैं। तो बहनों भैया, हम वी बीइंग यूथ, वी बीइंग यंग लीडर्स, वी शुड पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ आस, एवरी सर्विस एक्टिविटी वी शुड, हमें उसको मान लेना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ध्येय है। अपने साथ में एक एक यूथ लीडर को कम से कम 100 यूथ जो है हमारे साथ होने चाहिए, और हर एक जगह पर जाकर कहीं भी कोई एक्टिविटी हो रही हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा हो, चाहे मेडिकल कैंप हो रहा हो, चाहे ये ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, आजकल आप देख ही रहे हैं भव्यता के साथ हमारी जो प्रेम प्रवाहिनी है, जो रथ है भगवान का, सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, 100th ईयर ऑफ भगवान बर्थडे, वी आर सेलिब्रेटिंग इट विद ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पूरी ज़ील के साथ हम मना रहे हैं इसको, हर जगह पर मना रहे हैं, पूरे इंडिया में मना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, ओवर में मना रहे हैं। अभी अभी मैं आई वाज इन सिंगापुर एंड आई अटेंडेड भजन देयर। वहाँ पे बातें सुनकर लगता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इंडिया में, जो ये लोग विदेशी लोग कर रहे हैं। मैं विदेशी नहीं कहूँगा, आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टेइंग अक्रॉस इन द ग्लोबल, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल काउंसिल, और वो हमारे साथ रहते हैं, वो इतना कुछ वहाँ पे करना चाहते हैं, इतना कुछ आपसे सीखना चाहते हैं कि इंडिया में आप क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या नहीं करते हैं, क्या-क्या बाल विकास कैसे लेते हैं, आप कैसे ओल्ड पीपल को कैसे आप हेल्प करते हैं, लेप्रोसी होम्स में क्या-क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के साथ क्या-क्या करते हैं, टीबी की किट्स बाँटते हैं, हम लोग उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्शंस में देने में हेल्प करते हैं, कितने कुछ क्लोथिंग में देने में हेल्प करते हैं, ब्लड अपना देते हैं जिसको हम लिक्विड लव कहते हैं, और लिक्विड लव का जितना सब कुछ एक मुहिम चली हुई है इस सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में, प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव
जितना कुछ हम कर पाते हैं, कितना कुछ सीख देने के लिए अपने लोगों को, हमारे कम्युनिटी में किस किस को हम क्या क्या किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। देखिए, वो लोग हमसे सीखना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं अपने इस एरिया में, यानी कि अपने भारतवर्ष में, अपने भारत देश में, हर एक समिति में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में कितना कुछ करते हैं, कर ही रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं। परंतु और बहनों भाइयों, एक कमर कस लीजिए, अपने पैक्स को अपने और टाइटन अप कर लीजिए कि इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में हम दिखा देंगे करके कि क्या क्या हमसे भगवान कराना चाहते हैं। आज की इस टॉक को मैं एंड करना चाहूंगा एक बहुत ही, जो मैं हमेशा अपने वक्तव्य में कहीं भी अगर होता है तो उसको मैं जरूर कहता हूँ कि बीइंग अ सर्जन, जब हम सर्जरी करते हैं ना, तो जब मैं अपने कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम की बात कर रहा हूँ, सर्जरी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे जो बॉस थे, यानी कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी या डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप कैसे कैसे परिपक्व होते हैं। वी आर, आई थिंक हमारी एज ग्रुप होगा 20 से लेकर 35 या 40 तक, इस समय जो हम जुड़े हुए हैं। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वी कीप अवर एक्सपीरियंसेस इनसाइड, एंड उस एक्सपीरियंस से सीख कर कहाँ रुकना है, कहाँ सीखना है, क्या कुछ करना है, वो हमें सिखा रहा है भगवान। बाबा, जो भगवान बाबा के मुख से शब्द आते हैं, वही शब्द जो है मेरे बॉस के मुख से आते थे। ही सेड बाय द एज ऑफ 30, यानी कि 30 साल तक की एज में जब हम सर्जरी सीख रहे होते हैं, वी लर्न हाउ टू डू सर्जरी। यानी किसी भी प्रोफेशन में इस एज तक, 25-30 की एज तक हम सीखते हैं हमें ये काम कैसे करना है। चाहे हम इंजीनियर हो, चाहे हम डॉक्टर्स हो, चाहे एडवोकेट्स हो, कुछ भी हो, टीचर्स हो, सीखते हैं। उसके बाद जैसे एज बढ़ती जाती है, वी गेट experience more and more, we muster more experience, and by the age of 40 we come to know when to do surgery। अब मुझे कदम कब बढ़ाना है, किसी भी समस्या में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, कहीं भी मुझे कब सर्जरी करना है, दैट आई कम टू नो ओनली एट द एज ऑफ 40। ठीक है, 30 तक कैसे करना है, 40 तक कब करना है, और 50 तक आते आते बहनों भाइयों वो स्टेज आ जाती है कि 50 तक हम कहते हैं कब नहीं करना है, व्हेन नॉट टू डू सर्जरी। कहाँ पे रुकना है मुझे, अपने पैरों को कहाँ पर रोक लेना है, कहाँ पे सीज फायर कर लेना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा किया। वो कैसे सीज फायर करना है, किस मौके पर सीज फायर करना है, वो सीज फायर का समय जो होता है वो 50 पे आके खत्म हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि व्हेन नॉट टू डू सर्जरी, वो हम सीखता हूं मैं एट द एज ऑफ 50। 30 पे कैसे करनी है, हाउ टू डू, 40 पे व्हेन टू डू, एंड 50 पे व्हेन नॉट टू डू। ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। और भगवान बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए कोई एज नहीं है, ना 30, ना 40, ना 50। कहीं रुकना नहीं है हमें। हमें हमेशा हमेशा भगवान को अपने साथ रखकर चलना है। मैं आपसे दिली, एवरीबडी, द होल टीम विच इज विद अस टुडे, एंड सभी के लिए प्रार्थना भगवान से ये है कि हमें गाइड करते रहें। हम जितने भी इस लीडरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और भी लोग जितने भी होंगे, उस सभी के लिए प्रार्थना ये है कि हम पूरे संसार में फैल जाएं, और भगवान का मिशन, भगवान का जो हमारी गाइडेंस है, भगवान जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज और भगवान जितनी भी सर्विस एक्टिविटीज हमसे करवाना चाहते हैं, पूरे दिलो जान के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में कमर कस लगे हम निकल जाएंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय साई राम। ओम श्री साईराम सर। Thank you, Dr. Sanjay sir. बहुत बहुत धन्यवाद. It's always a privilege listening to you, and thank you. And it was amazing listening to you on this forum as well. Sir, Thank you. I still profoundly remember, as you said, that your words are a DD for us, the financial DD, which is the divine doctor, sharing the faith and the focus of life. As you were mentioning about your airlines experience, I was just thinking, and these words were coming, that life was about to kill, and you added your faith on Sai, and that just before that kill, that S of Sai got added in terms of your skill and your faith on Swami, and it have saved the person. I think that was a hidden secret for all of us, how Swami works. I profoundly remember to all the dear participants, as Sir said, he'll be sharing his marriage experience very soon with us. But I profoundly remember from last 2 years, I have been celebrating his marriage anniversary in Ladakh with us while doing medical camps, and Dr. Savita being there. And thanks for sharing those new aspects of Vibhuti and Vibhuti Mantram with all of us. And profoundly, I can definitely say on behalf of all the participants and organizing team, your life is really a reflection of NLP. A true leadership, which I have seen from my childhood,
starting from Swami's visit, even after that, when we came to Prashanti Nilayam to thank Swami with a small program of Anand Vilas, those 9 days, how Swami taught us Navda Bhakti, and the 10th day, it's a beautiful experience for participants also to know. Maybe I'll request you, if we get little time in this Q&A session, you can share that, how beautifully and that miraculously, and under your leadership, it happened so well. Also, I would like to request all the participants, सर आपकी अनुमति से भी हम प्रश्नोत्तर सेशन शुरू करना चाहते हैं. We would like to start the question and answer session for all the participants. As you are already aware, still I'm just sharing this as an update. Few ground rules. Please raise your hand and you shall be unmuted. आप Zoom पे अपना हाथ raise कर सकते हैं और आपको unmute किया जाएगा. Please keep your question short and crisp. सवाल को छोटा और सटीक रखिए. Limit yourself to one question. Is just a request. कृपया अपना एक ही सवाल पूछिए. आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपने सवालों को चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं और हम सर के साथ उन क्वेश्चंस को साझा करके उनको लेंगे. I request all the participants to raise your hand. We'll go with Sister Ripika from Odisha. Sairam sister, please unmute yourself. Sairam sir, Sairam brother and sister. Actually, स्वामी भगवान है, ये मुझे बिलीव नहीं है. मैं 100% श्योर हूँ कि स्वामी हैं, भगवान हैं और हमेशा हमारे साथ हैं. हमारे साथ जैसे बोले कि विभूति के बारे में, विभूति हमारे घर में कुछ भी होता है तो हम तुरंत ही विभूति खाते हैं. मेरे मम्मी तो इतने सारे विभूति हमें ठुसा देते हैं, बहुत भर भर के. तो मेरी बेटी भी है 10 साल की, वो भी मेरे से सीख गई है. वो भी हमेशा विभूति को पकड़ के रखती है. थोड़ा पेट दर्द होती है तो खा लेती है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2021 में मेरे पैर पर एक एक्जिमा स्टार्ट हुआ जब कोविड टाइम हुआ था. तो मैं बहुत सारे मेडिसिन खाई, इतने सारे मेडिसिन लगाई खाई कि ये कभी भी खत्म होना नाम नहीं ले रहा है. फिर लास्ट में मैं क्या बोली ना, मैं तो भगवान ही मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं. तो मैं क्या करती हूँ, रोज विभूति खाती हूँ. लेकिन सर मेरा एक मतलब क्वेश्चन ये है कि फिर भी ये क्यों अच्छा नहीं हो रहा है. मेरा एक्जिमा पैर से अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? स्वामी मुझसे गुस्सा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्वामी आपसे गुस्सा है. कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ हमारा जो कार्यकलाप होता है उससे कुछ डिजीजेस इन्फेक्टिव होती हैं. ऐसा नहीं है ना, स्वामी अगर सब कुछ करते तो हॉस्पिटल्स क्यों खोले स्वामी ने? स्वामी ने पुट्टपर्ती में, प्रशांति निलयम में, व्हाइटफील्ड में और जगह पे भी हम जितने मेडिकल सर्विसेज देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम विभूति पैकेट्स लेकर ही हम सब कुछ क्योर कर देंगे. आपका फेथ इतना सुदृढ़ है भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान की विभूति में, उसमें लगे रहिए. ऐसा नहीं है, परंतु साथ साथ ट्रीटमेंट भी करते रहिए. आप देखिए, ट्रीटमेंट जो है 50% काम करेगी यदि, तो 50% ये भी काम करेगा. कुछ चीजें होती हैं, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, कुछ एलर्जीज होती हैं, कुछ बहुत जिद्दी होती हैं. जिद्दी मतलब वो ठीक नहीं होने में आती हैं, परंतु उनका समय होता है एक. एंड भगवान ने कुछ कष्ट आपको देने हैं. ही इज टेकिंग अ टेस्ट ऑफ टाइम. आपका समय, आपका कुछ ना कुछ वो ले रहे हैं भगवान, टेस्ट ले रहे हैं भगवान. टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. आप ये करते जा रहे हैं और भगवान का नाम लेते जा रहे हैं. देखिए, बेटी भी खाती जा रही है, आप भी खा रहे हैं विभूति, आपके लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं. परंतु भगवान ने ऐसा कुछ सब कुछ किया हुआ है. हार्ट के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन भगवान करवाना चाहते हैं हमसे. हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं ना. तो देखिए कहाँ कहाँ जाकर भगवान कहते हैं वहां पे प्रवेश कीजिए. तो इस भगवान से निराश कभी भी नहीं होना है. भगवान निराशा के लिए नहीं है. शायद आप विभूति ना खा रहे होते तो ना जाने एक्जिमा कहाँ का कहाँ पहुंच जाता. आपके पैर में ही है, आपके चेहरे तक पे भी आ सकता था, परंतु वो विभूति है जिसने उसको प्रिवेंट किया हुआ है. तो आई थिंक डोंट लूज होप, यही काम करेगी मैम, वो करेगी जरूर. साईराम, साईराम सर. Sairam, thank you sister. Brother Anuj from Sikkim, please unmute yourself, brother. Sairam sir, it was wonderful hearing you talk and share your anecdotes. Actually, I had written down my question. I just want to read it out. Sir, since you are in a profession as scientifically sophisticated as yours, how do you personally reconcile your scientific medical training with your spiritual convictions? Perhaps science and spiritual belief often seem to collide in both nature and philosophy. How do you differentiate between the two in your personal and professional life? And how do you manage to integrate them without compromising either? Right. You This is rightly my question. put this question, and this question was asked from Swami many a times. भगवान से बहुत कुछ पूछा जाता है इसके बारे में. भगवान साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी
Are they complementary? Are they brothers and sisters? Are they brothers? What is science and what is spirituality? Are they complementing each other or not? तो भगवान हमेशा कहते थे आपकी समझ यदि पूरी है, आप समझ लेते हैं पूरा, क्योंकि भगवान के टेस्ट लेने के लिए बहुत लोग पहुंचते थे, साइंटिस्ट आते थे, डॉक्टर्स आते थे कि भगवान से पूछने के लिए भगवान ये सब कैसे, वो और वो उसका वो भी दे देते थे एक विकल्प, यानी कि उसका एक उल्टा जो है निष्कर्ष निकाल कर भी भगवान के सामने पेश कर देते थे। वो एक एक एपिसोड होता था, परंतु यहाँ तो लाखों एपिसोड्स हैं, लाखों वाक्य ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि भगवान, मैं जो अपने अपने फील करता हूँ, मैं जब खुद कह रहा हूँ आपको 50,000 सर्जरीज में से आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन कहने को नहीं आई है अभी तक। मैं कहता हूँ कॉम्प्लिकेशंस यानी कि वो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट वो आती जरूर है, परंतु मेरा कन्विक्शन, फर्म कन्विक्शन है कि व्हेन स्पिरिचुअलिटी वर्क्स, यानी भगवान जब अपना हाथ उसमें डालकर काम कर रहे हैं, दैट डिविनिटी, दैट मेक्स योर माइंड गो स्टडी। वन थिंग, आपका माइंड में कभी भी उसे विचलित नहीं होने देंगे उस कार्य के लिए, उस कार्य को करते हुए जहां पे आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है, जहां पे आपको कंसंट्रेट करके काम करना है। आप ये मानकर चलिए कि भगवान का नाम साथ है, आप कहीं भी विचलित नहीं होंगे। मैंने कहा ना, जब भी आप किसी काम में फॉल्टर करते हैं तो तभी करते हैं जब आपकी कंसंट्रेशन जो है फॉल्टर करती है। आप कन्विक्शन रखिए कि भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपके थ्रू काम कर रहे हैं, भगवान आप हमेशा हमारे साथ रहिए, आप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। तो इवन मेडिसिन में भी मैं कहता हूँ 90% ऑफ डिजीजेस दे आर नॉट, आई विल से ऑर्गेनिक, दे आर mentally associated, they are spiritually associated and many a things। 90% illnesses अगर भगवान की विभूति क्योर करती है तो आप मानकर चलिए क्रेडिट जो है डॉक्टर्स ले लेते हैं। वो सारे डॉक्टर्स जो है क्रेडिट लेकर बैठते हैं कि भगवान ने कर दिया, भगवान ने नहीं किया, मैंने कर दिया, एंड दे टेक वट एवर क्रेडिट पीपल गिव देम, बट नहीं, वो भगवान कर रहे होते हैं सब कुछ। तो मेरा कन्विक्शन तो यही है कि ठीक है, अपना प्रोफेशन तो है ही है, आई हैव टू डू द वर्क असाइन टू मी। भगवान ने मुझे डॉक्टर क्यों बनाया? भगवान ने इसीलिए बनाया ना कि आई हैव टू डू माय प्रोफेशन। भगवान जो कुछ फिजिकली नहीं कर पाते हैं वो हमारे थ्रू भगवान करवा रहे हैं। दैट इज, आई थिंक दैट शुड बी द आंसर टू इट, कि हम इस साथ साथ लेकर चलेंगे तो भगवान हमेशा कहते थे आपको समझ, आपकी समझ में आ जाना चाहिए ये बात को कि हाँ भगवान है और भगवान हमारे थ्रू सब काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी मेरी डिजीज का निदान हो रहा है वो भी भगवान के थ्रू ही हो रहा है, उसी के हाथ से हो रहा है। सही। Saram, thank you, brother. Sister Vaishnavi from Karnataka. Please unmute yourself. Sir. Hi Ram, so am I audible? या ऑडिबल प्लीज। सर जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर की वो बहुत ही डिवाइन थी। मुझे बस एक बात पूछना था कि मुझे पता है हम सब साईं में संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं, बट कभी कभी लाइफ में ऐसी टाइम्स आ जाते हैं जब बहुत मुश्किल लगता है फेस करना भी। तो ऐसे टाइम्स में क्या कोई एक ऐसी प्रिंसिपल है स्वामी की या कोई कोटेशन है जिसको आप साथ लेके चलते हैं? लाइफ इज अ गेम प्लेड, तो हमने कहा जस्ट कीप प्लेइंग इट। आजकल चल रहे हैं ना, मैचेस चल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फॉर द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस, एंड क्रिकेट इज अ बेस्ट माध्यम है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कीप प्लेइंग द गेम बिकॉज स्वामी इज देयर टू प्ले विद यू, स्वामी इज देयर टू गाइड यू, स्वामी विल गिव यू द बेस्ट बॉल टू प्ले इट एज 6। उसको क्रॉस द बाउंड्री मारने के लिए भगवान बैठे हैं ना, और आपके बैट में भी बैठे हैं, आपकी बॉल में भी है भगवान। वो सब कुछ भगवान जो है आपको बता रहे हैं। तो कभी भी आप निराश मत होइएगा, कभी भी मुश्किलात आ भी जाती आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी ना। जब भी आप रोड चल रहा है, नेशनल हाईवे चल रहा है, स्पीड ब्रेकर्स तो भगवान ने सब जगह दिए हुए हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर्स पे तो आपको स्लो डाउन होना ही है ना। तो मैंने कहा ना, बाय योर इंक्रीजिंग एज यू कम टू नो, यू गेट द एक्सपीरियंस, कहाँ पे मुझे रुकना है, मुझे करना है, कहाँ पे कब करना है और कैसे करना है। ये सब कुछ कब कैसे वो सब कुछ भगवान बता ही जा रहा है। और ये आई थिंक दिस कोटेशन फिट्स इन द बेस्ट इन द सेंस कि आपको लगेगा अपने आप में जब भगवान में फेथ होगा और भगवान के बारे में बस 2 मिनट, भगवान कहते थे कि 2 मिनट मेडिटेशन कर लो बहुत है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उसका नाम ले लो, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। आप देखिए समस्याओं का निदान आपके ड्रीम में हो जाएगा, आपके भगवान की फोटो के सामने हो जाएगा, आपके काम करते करते ही आंसर निकल आएगा। मैं बता रहा हूँ, सर्जरी में मैं ऐसे फंस जाता हूँ कई बार कि मुझे लगता है भगवान अब मैं कैसे निकलूंगा इससे, शायद मुझे ऐसे ही बंद करना पड़ जाएगा। नहीं, वो धीरे धीरे ऐसे उंगली डालता हूँ अंदर, हाथ डालता हूँ और वो अपने आप में ट्यूमर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। मतलब इट हैपेंस, यू नो, इट्स रियली सब कुछ ये ऐसा होता है। Thank you, sir. Brother Venkatesh, Sai Venkatesh from Maharashtra.
Sairam sir, I'm audible. Yeah, please. What was Sairam Venkat? sir, so it was such a very wonderful experience you have shared all with us, especially the thing you said on the middle of the air there was a period of medical emergency, which your friends want information back of here to save him, as well uh, as you must, as a doctor, you must have so many emergencies in the middle of the surgery. So in these times, how to keep the mind a mindful, like how to be very clear things. What do we do next? Because in emergency time, our mind will blabber. Oh my God, what happened? This thing have happened. That thing have happened. What should I do now? So at the time, most of the times, many persons will be experiencing this. Their mind is very blank. So their mind will not say no more idea what to do next. So at that time, how to be very clear and calm. I didn't clearly get your voice was not clear, but जहाँ तक मुझे समझ में आया है, तो वो भगवान ने हमेशा कहा है ना, लुक बिफोर यू लीप वन, स्टॉप, लुक एंड देन गो। जैसे कहा था ना कि जब लाइट्स होती हैं हाईवे के ऊपर, तो वो ग्रीन लाइट आती है, सबसे पहले रेड लाइट दिखती है आपको, फिर येलो दिखती है, फिर ग्रीन दिखती है। तो दोज आर द सिग्नल्स जो भगवान भी आपको देते हैं लाइफ में कि व्हेन टू प्रोसीड। जब आपने कहा ना कि भी जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं या कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है, आपका माइंड जो है वेवर बहुत करता है। इफ यू आर स्टडी फेथ इन गॉड एंड इंटेंस फेथ इन गॉड, उसको करते आप जब भी आप करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। कल मैं सोच रहा था, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हाउ व्हेन व्हाट टू स्पीक टुमारो। आज मुझे क्या बोलना है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या से सब चीज़ों को अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे मैं गैदर करूँगा, कैसे इतने सारे पढ़े लिखे लोगों के सामने इतने सारे लोग होंगे, 500-600 लोग या पार्टिसिपेंट्स होंगे या और भी लोग होंगे, कितने लोग सुनेंगे बाद में भी। तो क्या मेरा वक्तव्य जो है, मेरा जो टॉक होगा वो वाक़ई में लेजिबल होगा, नहीं होगा, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं सबको जोड़ पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। मेरा माइंड जो है ना, शुड हैव अ साउंड स्लीप बिफोर एनी मेजर एक्टिविटी। जब भी करना है, सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। रेस्ट बिफोर अ मेजर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है। प्रेयर्स अगर आपकी वाक़ई में होंगी, जुड़ाव होगा भगवान के साथ, तो आपकी प्रेयर्स आंसर हमेशा-हमेशा होंगी। और आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी, मैं कहा ना, मैं हाथ डालता हूँ तो अपने आप शरीर जो है अपने आप वो कोई ना कोई कर रहा होता है साथ। उसी तरह मुश्किल-मुश्किल काम भी जितने होते हैं, वो सब अपने आप में होने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक मुझे जो समझ आया वो मैं बता दिया आपको। आपका थोड़ा आवाज़ से जो समझ आ रहा था वो बताया मैंने। सॉरी सर, एक्चुअली जस्ट आई वाज आस्किंग कि ऐसा सिचुएशन पे माइंड को कैसा बहुत काम एंड वेरी क्लियर रखना चाहिए, बस ऐसा ही कह रहा था। Yes, Brother Venkatesh. We hope that it answers your question. If you have any other following question, please do share it in LMS and we'll take it up with sir. Sir, there is one more question from Andhra Pradesh, Brother Arvind. He's thanking you and is also there's a small question. So many career paths through which we aim to serve Swami. How to decide what path to take when no direct path is illuminated by Swami? How to pick a path for himself? Means in the professional life or in the personal life? I'm hoping it's a professional one. Or he's Profession, asked aim to serve Swami, through which we aim can aim to serve Swami. राइट। आई थिंक देयर इज नो प्रोफेशन जहाँ पे आपको लगे कि हम स्वामी को सर्व करना चाहें, तो ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो उससे अछूता है। सभी प्रोफेशंस के थ्रू हम स्वामी का काम कर सकते हैं। सभी प्रोफेशंस के साथ हम स्वामी का जो निर्देशन है उसका उसको सात्विक कर सकते हैं या उसको चरितार्थ कर सकते हैं। किसी भी ऐसा नहीं है, पर तो स्वामी गाइड हमेशा करेंगे ही करेंगे। आपने कितने ही वक्ताओं को सुना होगा या कितने ही एक्सपीरियंसेस सुने होंगे जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं फलां प्रोफेशन, मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरा फैमिली वाज अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स। आई वाज नेवर होपिंग, नेवर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, but he guided me to become a doctor, and now today I am a successful doctor. I claim myself to be a successful one. सक्सेस तो कभी भी नहीं है, मरते दम तक भी वी आर ऑलवेज लर्निंग, एंड किसी भी प्रोफेशन में हो वी आर ऑलवेज लर्निंग टिल द टाइम वी आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तब तक भी हम सीखते रहेंगे हमेशा। परंतु हाँ, जब तक कार्य करने का मौका दिया गया है, वो भगवान का कार्य हमें करना है और वो करते ही रहेंगे। क्योंकि वो अगर नहीं भी करोगे ना, आप एक दिन चुप भी बैठ जाओगे, अगला दिन ऐसा होगा जब भगवान आपको झकझोड़ के कह देंगे, भैया मेरा काम कहाँ गया, वेयर इज योर माय वर्क। आप अपना ही करते चले गए, आज क्या बात हुई, आप कमाते चले गए,
यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, यू हैव फॉरगॉटन मी, माय वर्क, ऐसा नहीं है, बट स्वामी विल गाइड यू। आप फिर भी एक एम तो बनाना पड़ता है कि मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना है, बट ये है कि किसी भी प्रोफेशन के थ्रू आप स्वामी का काम कर सकते हैं, ये मेरा पक्का वादा है। I profoundly remember a dream, sir, where I was requesting the same thing to Swami after completing my MBA. And I was asking Swami, how can I serve you? Then he beautifully said, whatever you do, make that thing as my service. And then Yes. I was asking Swami, no, still I want to serve. I want to serve you. He said, don't worry. If I'm not serving, I'll feel negative. He said, don't worry. मैं नाक पकड़ के भी ड्रीम में नाक पकड़ के भी काम करा लूंगा. Then I was requesting in dream Swami, what if I turn? He said, then do opposite of naak as कान. मैं कान पकड़ के भी करा लूंगा. So as Swami says, be available. I'll get the work done through you. I'll request Sister Monica to ask her question from Madhya Pradesh. Sairam sir, am I audible? Yeah, you're audible. सर मुझे पूछना था कि आपने कहा था कि विभूति हमेशा साथ रखना है और स्वामी से कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करो या प्रॉब्लम होती है जब तो उनसे मतलब कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत सारी चीजें बातें पूछने पर वो हमें मतलब आंसर देते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हमें ऐसा लगता है कि स्वामी हमारी सुन नहीं रहे, तो ये सब क्यों सर? जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वामी का आंसर मिलेगा जरूर, भले देर जरूर हो। स्वामी कई बार ऐसा भी करते थे, पुट्टपर्ती में प्रशांति निलयम में कई बार 3-3 साल तक लोग वेट करते थे। स्वामी जो है राइट टाइम, इज अ टाइम डिस्टाइंड। भगवान के उसमें जो है किताब में आपके लिए समय है, आपके लिए समय निश्चित है, निर्धारित है कि समय आपको कब आंसर भगवान ने देना है। चाहे आपके ड्रीम में दे देंगे आपको आंसर, आपके प्रत्यक्ष आपको दे देंगे उसका आंसर, या कहीं भी ना कहीं आपके किसी ना किसी फॉर्म में, किसी बंदे के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। आपकी बहन के थ्रू, माँ के थ्रू, आपकी फ्रेंड के थ्रू, कहीं ना कहीं कोई आंसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर आपको उसको फील कर लेना कि हाँ, ये आंसर था जो भगवान मुझे देना चाहते थे। भगवान देंगे, जरूर देंगे 100%। बट ये है भगवान के उसमें जो है ना किताब में, देर है अवश्य परंतु अंधेर नहीं है। मतलब कि देर और अंधेर, यहाँ पे दूसरी बात कह रहा हूँ, परंतु भगवान हमेशा हमेशा आंसर देंगे आपकी समस्या का। बहन कह रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sister. I'll request Sister Subratna. Sister, your name is not fully coming. From TS25. Are you there, sister? Yes, sister. Please unmute yourself and ask your Sairam. questions. कह रहा हूँ। Sairam sir, my question is like, how did you decide to choose surgery? Because there are so many departments in the medicine. Because I have to choose in 1.5 year, and I'm studying in Christian Medical College, and the patients there will be like variety of religions and variety of beliefs. So I sometimes I feel little hesitant to talk about Swami or use Vibhuti to them. So how to overcome that? राइटली पुटन। ये हमारे साथ भी यही होता था। जब भी हम चाहते थे कि हम स्वामी का नाम लेकर कार्य करें, और स्वामी का आई शुड स्पीक इन इंग्लिश आई थिंक, हाँ, whenever we used to like think of putting in Swami's name, whenever I used to work, जहाँ भी whenever I used to do surgery or trying to explain to something to him, you will feel that there is a spark of divinity, a spark of God's name in a person who is suffering. ये बंदा सफर कर रहा होता है ना, he will be always longing to hear something about God, because I think nobody is an atheist, and कहीं पर उसके दिमाग में होता है कि हाँ, भगवान ही मुझे बचाएंगे। He always prays. Whosoever is in pain, no, he takes Bhagwan's name, Ram, Ram. He'll say, Sai Ram. He'll say, Oh Ram, hey हनुमान, बचा ना मुझे यार। कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो कहाँ उसका मौका को ताड़िए आप, उस मौका का फायदा उठाइए, वहां पे साई राम घुसा दीजिए, उसको एंटर करवा दीजिए उस नाम को। जस्ट मेक इट एंटर देयर, डोंट हेजिटेट। आई थिंक हेजिटेशन विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर we'll be making. Hesitation shouldn't. You are a medical student, and when you are a medical student, now is the time you never have to be hesitant. You have to be bold enough. जहां मेरा कन्विक्शन है, मेरा कन्विक्शन भगवान श्री सत्साई बाबा में है, तो आई हैव टू यूज दैट नेम, एंड यूज दैट नेम मीन्स try and understand that other person's faith.
he be a Muslim, he be a Buddhist, he be a Christian, take that name. जो स्वामी ने कभी नहीं कहा कि श्री सत्य बाबा का नाम लीजिए. You take God's name. One, God will save you. God will save you. Allah will save you. Jesus Christ will save you. Buddha will save you. Whatever faith he has, use that name. But use Vibhuti with that name. I'll say it'll do wonders of wonders. Sai Ram. Thank you, sir. Considering the time, we'd like to request all the participants, please log into LMS portal and go to the forum of Satsangatya Nisangatvam episode 5 and enter your questions. We'll share it with sir and we'll take it further. We'd like to continue further. Now I would like to request our program convener, Dr. Yogender Verma sir, to speak few lines and few words for us, sir. Om Sri Sai Ram. My pranams at the lotus feet of Bhagwan. It's really a great pleasure to, I won't say conclude, but to speak, as rightly said by Kush, some words. In fact, I heard Dr. Sanjay Agarwal. In fact, I know him since long, but many things which I could gather today. Normally, you interact with a person, you live with a person, but many things come out when one speaks, and particularly at this type of platform. Actually, Dr. Sanjay Agarwal's story is a story of a Bal Vikas student with a very rich spiritual sanskaras and his faith. One thing I would like to share with all the participants, that you see, all discussions become really very superfluous if we do not understand that the source of everything is God. And here, Dr. Sanjay has full faith that where is the source, from where the energy comes, from where the intuition comes. Because in his personal life, I know that he is a very busy surgeon, but at the same time, he is leading organization. Not only he led in Himachal Pradesh and now whole North India. And many times I tell him, being an elder, I tell him that Dr. Sanjay, take some rest. Take some rest. You should have some break because you have to just consolidate your energy. लेकिन होता यह है कि क्योंकि उनका जो सोर्स है, that is God. और जो unshakable faith, whatever happens in our life, as one one sister, she was asking कि मैं क्योर क्यों नहीं हो रही हूँ, विभूति लगा रही हूँ, लेकिन जो आंसर उन्होंने दिया है, we don't know actually. हम अपने बारे में नहीं जानते, हमारे पिछले जन्मों के कर्म क्या हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी, उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में भी नहीं जानते. तो आज का जो ये एपिसोड था विद डॉक्टर संजय, एज आई टोल्ड यू दैट वी वर्क वेरी क्लोजली. He is such a humble person, such a noble person, and very cool-headed. But at the same time, being a surgeon, I think in our life, we must know how to do surgery. And this NLP program is of surgery, that we have to transplant ourselves, we have to transform ourselves. So I think in a professional way also, from spiritual angle also, I think this session was a wonderful session. And I congratulate Dr. Sanjay and pray Bhagwan that please give him more energy so that he can do, because in the organization he is doing so many things, starting from his own profession, where now international conference is being organized in Puttaparthi. He is leading that also, and in Leh, Ladakh, and then all 5 states of North. So Bhagwan give him energy, and I think we have learned a number of things. A person with a multi-dimensional personality. I know he is a good speaker. I know he is a good writer. I know he is a good surgeon. And then over and above, he is a very good devotee.
So, friends, let's learn these lessons from our learned speaker. With this, thank you very much, Dr. Sanjay, and all the best for all the participants. Thank you. Saina. Thank you, Yogendra Verma sir. I think you have rightly mentioned it, sir, you coined the word, that today's surgery was performed to reshape 400 plus participants for this year batch. And I'm hoping this surgery have gone very successfully with the Vibhuti. And going further, would like to request Sairam Kush brother, you're on mute. Your mic. Sairam, sir. I was just mentioning, sir, you have rightly coined that word, that today's surgery was done so successfully. I think it could be another record of 400 young minds together to reshaping their future with Vibhuti. And I think this is going to be a great blessings to all the participants, that they have been divinely, they have received that blessings. I'd like to request Dr. Gopikrishna Piditala sir, our convener, to share a few words before we proceed further. Sairam. साई राम। मेरा नाम बुलाने के पहले माइक बंद हो गया, इसका मतलब है मत बात कर तू। But one important thing that I wanted to say is that whenever you hear a good bhajan or when you're in a spiritual thought process, it is always better that you don't talk and exit quietly so that the message that has been shared to you gets permeated into your heart. Normally, I would like to speak a lot of things when a speaker comes on board. Sanjay, as Professor Yogendra Verma had said, good devotee and good surgeon. ये तो पूरा मैं मानता हूँ, बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि he is a good man. And I've been working with him for quite some time. It's only maybe about 7 years or earlier, we got to get to know very closely, when we started the North Zone Seva Medical Seva कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है. I didn't know Dr. Sanjay earlier, but as Professor Verma said, in the Satsai organization, he's the coolest cat. Both calm. I've never seen him losing his cool. मैं तो काफी बार अपना cool खो बैठता हूँ मैं. I don't know, प्रोफेसर वर्मा को भी मैं कभी गुस्से में नहीं देखा हूँ. मेरा तो बत्ती जल्दी उड़क जाती है. But Dr. Sanjay is a calm person. That calmness comes from the serenity and spirituality inside. And that is what we have to learn from such people. On the other side, I know he's an extraordinary person who's got a lot of love for Swami. When somebody has got a love for Swami, automatically the spirituality comes in. And, the way he explained about Vibhuti or the stories that he wove on, or the adventures that we took in the Alexandria boat, all these, are aspects of his demeanor and the way he actually brings out his personality. So, ye Satsangat pe Nisangat mein, basically, we would like to all you youngsters to meet such people in your lives, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक trait हमको ले जाना पड़ेगा. We'll have to imbibe some trait from every speaker who comes on board. And Dr. Sanjay, I think, is a younger brother to me and one of the closest in the organization also. We gel a lot on most of the topics that we discuss. And I would like to take back in this talk the calmness and the pleasant approach that he takes into his life. And this is something that all of you youngsters who are here, as you're growing old, as we are moving forward into the age of the 25th, 2025 coming in, with the next gen coming in, the robotic era coming in, with the machines, superseding us, the human minds. I think to be calm in life, I think such talks are very necessary. Such people are very necessary who can guide us in our lives and take us forward. And the only thing that I would like to say is, may Swami bless Dr. Sanjay the best way that he
he thinks and he should, so that he becomes a good model for all of us in the future era. Thank you so much, Dr. Sanjay. It's been great listening to you, and God bless you. God bless your family. I know your entire family is in the stream of Seva, and this is a great session that I would say. Thank you once again. Jai Sai Ram. Thank you, sir. Thank you so much for those words. Thank you, everybody. Sai Ram. Thank you, sir. Just want to add a small experience which we had together with Sanjay sir and with Swami in 2010. As I was mentioning earlier, we reached Prashanti Nilayam on the 1st of 10th month of 10th year with Anand Vilas kids, and we were there in Prashanti Nilayam. Day 1 have passed, second day, third day, fourth day, and we were losing our calm, Gubia. And then on the 6th and the 5th day, it so happened that everyone is chanting Sai Gayatri, and we were, half of them, they were taking coconuts and then taking 108 pradakshina, and then in the evening pressing their feet, because it's very uncomfortable doing it every day. And on the 8th evening, we were like about to, just, we actually broke down, and we were like, and then we went to sir, and sir said, do you have faith in Swami? Then let him do the rest, because we are here, you need not to worry. And then, brothers and sisters, you won't believe me, then on 9th evening, Swami came once, and then all of the students were dressed, and so Swami asked why they are dressed like this. I think on 8th evening, on the 10th month, and we were saying, Swami, as if you don't know why these kids are sitting and why they are dressed up. Beautiful play, as sir said, like life is a play. I'm sharing it because as a leadership lesson, what I have personally learned. And then on the 10th morning, we were like, okay, Swami have approved. Now we have to rush. Everyone was running around because half of the things were packed, and half of them, they were traveling on the 10th via Karnataka Express to Delhi. And that evening, program started. Swami was there. He was not well. Still, he was there. And then continued. I think it was 7:30, and then again it was close to 8. And sir was there. Swami was calling sir again and again. Was sharing few things with him about the program, and then everything so went well. And then when me and sir, we were in auto and we were going to railway station, just cutting short the story, we got to open an interview. Swami was taking production of that entire group. That happened first time I think in Prashanti Nilayam, where all of us were in middle and Swami was going around us. And it's a beautiful experience. And still in that rush, Swami told sir that don't worry, train is coming late. And train came little late, Karnataka Express. We were entering and train was there. And believe me or not, we got one door and we pushed all the SSS VIP seniors in the train. One person came with the exact amount of food packets. And sir was like, let's take it, let's give it to that, that SSVIP village. And they took those packets and it was exactly the same. And then when we were coming back in auto, how Swami plays and how Swami make you understand with that, you have that faith, you have to have that calmness, as Gobia said. Bhaiya suddenly said it was Dashavatar play. 10th was the date, 10th was the month, and 10th was the year. It was 10, 10, 10, 10, 10. A beautiful experience that we were panicking in those 9 days. Swami, you're not accepting our Navda Bhakti. But Swami actually made us practice that. I think these were great leadership lessons, which I personally learned, sir. And we would like to request you to come again on this. Swami stayed till 10 o'clock. Yeah, 10. Right. And it was such a beautiful experience you just narrated. And Kush was like, I don't know what words to use, but those that day, and Swami blessed me with Padma Namaskar 10 times. 10. And that was one of those last programs which Swami attended in physical form. And he's been attending all programs, but that program was the last. And Swami did, and in that program, no, I was just thinking, Swami must be taking in that I'm leading the group, so I must be a teacher or sorts of the Bal Vikas children or something. And Swami just patted my shoulder and said, "Doctor." He said, "Doctor." No, when he said doctor, no, my eyes couldn't believe. My tears couldn't stop. And then in all those conversations which I had with him during those 3 hours, it was an open air interview, and that too in Sai Kulwant Hall. I was just being with him throughout 3 hours. And at the last, he said, "Go, leave those SSVIP, as Kush Bhai has said, those elders, leave them to the train." And I was thinking that that express leaves at 10 o'clock. And Swami, you're telling me at 10 that go to the railway station and leave them.
and Swami said, train is late. And literally speaking, when we reached the railway station, the train was standing at that signal. The signal was up, and Kush and myself were there, and we were just thinking they didn't have food and all. And somebody came ahead with 30 packets of food, 30 packets of water, and just whatever money we had, just we paid. And all those vehicles which we took to take those people there, they all vanished, and nobody took any fare from us. Swami had arranged everything for us that day, and that was the ultimate. And when we returned back, no, we were thinking Swami must be still sitting there and waiting for us. That was not to be, but Swami is still sitting with us till today also. Sairam. Thank Very you. true. Thank you for those words, and taking us back on those fleeting moments and lasting memories for us. I would like to thank our convener, Dr. Gopi Krishna Piditala sir and Yogendra Rama sir, for your guidance, commitment, and the vision for the program. And please keep getting such great speakers for us so that all of us we can get benefited. I would like to request on behalf of all of us to Swami. Good speakers. Perfect, I'll say, sir. Sorry for the word. I'll change my adjectives and sorry, this is from the emotion ones. Thanks, Swami, for guiding us and guiding this session and ensuring us on the path of self-transformation, because we believe, Swami, that a small pupa, when it converts into a beautiful butterfly, a great transformation take place, and there is no going back. So we would request Swami to transform each one of us and request the IT team to proceed for the Shanti Mantra. Sairam. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो